Assalamu alaikum viewers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? Viewers, in previous lecture, we have learned about the analogies and the techniques of analogies and the understanding word patterns. We have learned about it. I am the same person, Mr. Saidullah Khan, your means famous teachers, Mr. Saidullah Khan. Okay. Today, inshallah, we will do some exercise of analogies as I have already mentioned in my previous lecture. Before going to start exercise, I'm just going to remind or recall you little bit previous. Look at the screen. This are the some tips to solve or to understand analogies. To answer an analogy question, you must. Must means necessary, mandatory. Okay. Number one, recognize the relationship between the words in the given two pairs. Word pair, sorry. Given word pair. Recognize the relationship between the word in the given word pair. It means I have already mentioned you in my 12 points. You already noted down in previous lecture what is the relation, whether it is a synonym, antonyms, whether it is the cause and effect, whole and part. Okay, these are many more. Okay, so we'll have to just consider this one first. Next, select the answer containing words related to one another in most nearly the same way. Second, select the answer containing word related. First, we'll have to just select the answer. What type of answer? That related to one another in most nearly the same way. Same way means if they are synonyms, so must be synonym. If they are antonyms, so the other word should be antonym. Okay, and cause and effect, performer and object or action. Okay, or action and object, ये इनका ख्याल रखना है आपने. Getting? Next, recognize when two word pairs display equal relationship. जब दोनों इक्वल रिलेशनशिप जाहिर कर रहे हो तो रिकग्नाइज कीजिए, गौर कीजिए, बहुत एहतियात कीजिए. ये बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं. प्लीज़ कीप इन माइंड. इफ़ यू वांट टू मेक अ क्लिप तो इसकी क्लिप भी बना लीजिए. अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए. इफ़ यू हैव अ पेन पेंसिल सो प्लीज़ नोट इट डाउन. ओके, नाउ come to the next we are just going to start here some analogies. Analogies look like this. Look at the screen and try to understand, and please make sure you know to analogy. Number one, look at here the relation up, down, over, under. It means up is to down, is over is to under. Now consider what is the relation between or among these words. अब देखिए इन पेयर ऑफ वर्ड्स में कौन कौन सा रिलेशन है. अप इज टू डाउन, अप का रिलेशन डाउन से क्या है और ओवर का रिलेशन अंडर से क्या है. कंसिडर, गौर कीजिए, तसव्वुर कीजिए कि इनका क्या रिलेशन है. क्वेश्चन, गौर, कुछ जहन में आता है क्या रिलेशन है. क्या सिनोनियम्स ही हम मायने अल्फाज हैं, क्या एंटोनियम्स ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, क्या ये कॉज एंड इफेक्ट है, क्या ये लोकेशन है, क्या ये फंक्शन है, ये हैं क्या. ठीक है, देखिए. नाउ सी इन व्हाट वेज कुड दीज पेयर ऑफ वर्ड्स बी रिलेटेड. किस तरह ये रिलेटेड हो सकते हैं. ठीक है, these could be related means the relationship will always have to do with the meaning of the words की meaning से होता है. I get it, they are opposite. समझ आए अब जैसे हमने कहा था up और down,
ओवर एंड अंडर। तो अप एंड डाउन, ओवर एंड अंडर, ये आपस में क्या रिलेशन रखते थे? ये ऑपोजिट्स हैं, ठीक है ना, ऑपोजिट्स। गेटिंग? तो इनका रिलेशनशिप आपको समझ आ गया होगा, ये ऑपोजिट्स है। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉसिबल रिलेशनशिप इन एन एनालॉजी। एक एनालॉजी में कितनी पॉसिबल रिलेशनशिप हो सकते हैं? फिर मैं कह रहा हूँ आपसे, आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू, प्लीज नोट इट डाउन। इफ यू हैव अ पेन पेंसिल, सो प्लीज नोट इट डाउन, ओके, एंड मेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जिस तरह आप चाहे से अपने पास नोट कर लीजिए। गेटिंग? और देखिए इसे और समझने की कोशिश कीजिए। यस, अब देखिए इसमें फर्स्ट रिलेशन हो सकता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स या एंटोनिम्स का हो सकता है। सेकेंड रिलेशन अ पार्ट टू द होल हो सकता है। थर्ड रिलेशन अ मेंबर टू द कैटेगरी दैट कंटेन्स इट। मेंबर और कैटेगरी भी हो सकता है, उसको कंटेन करता हो। नंबर थ्री, कॉज टू इफेक्ट और इफेक्ट टू कॉज, यूं भी हो सकता है। कॉज टू इफेक्ट भी हो सकता है और इफेक्ट टू कॉज भी हो सकता है। जिस तरह पार्ट टू होल है, होल टू पार्ट भी हो सकता है। वेरिंग डिग्रीज ऑफ अ क्वालिटी और ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी। वेरिंग द डिग्रीज ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ये क्वांटिटी और क्वालिटी की डिग्रीज अगर वेरी कर रहे तो इससे भी देखना है कि किस तरह है ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड यू। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट टू फंक्शन, फंक्शन टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टू फंक्शन भी हो सकता है, एक्शन टू फंक्शन भी हो सकता है। परफॉर्मर, और हम कह सकते हैं कि जनाब वो भी हो सकता है कि एक्शन और ऑब्जेक्ट। गेटिंग? नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ हियर इज एन एग्जांपल ऑफ सिनोनियम रिलेशनशिप। देखिए इसे पहले ही एक्सरसाइज में बता दिया गया ताकि आपको जहन में आ जाए, लेकिन जो पेपर आपका आएगा उसमें इस तरह नहीं लिखा हुआ होगा कि सिनोनिम रिलेशनशिप। ये तो आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, इसे जहन में रखिए। ओके, देयर इज वन एग्जाम्पल ऑफ सिनोनिम रिलेशनशिप। देखिए, नंबर वन, इन्फेंट इज टू बेबी। Infant is to baby, and grown up is to question mark blank. Please hurry up, सोचें, मेक अप योर माइंड, क्या होना चाहिए इनका आपस में रिलेशन, क्या बनना है? ऊपर बना दिया सिनोनिम, तो अब हमें ग्रोन अप का सिनोनिम तलाश करना पड़ेगा। ग्रोन अप का मतलब होता है एडल्ट, बड़ा, यानी हम ये कह सकते हैं बालिग, उसे कहते हैं। अब हम इसका जो सिनोनिम होगा, लुक एट योर स्क्रीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, ग्रोन अप का आ गया एडल्ट, इन्फेंट बेबी, ग्रोन अप एडल्ट। डू यू गेट इट? समझ आया? फर्स्ट रिलेशन आपको समझ आ गया बेटा? इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह आपके बोर्ड के पेपर में आएगा, ब्लैंक्स आएगी, उस ब्लैंक्स को आपने फिल अप करना होगा। गेटिंग? और फिल इन भी कर सकते हैं आपसे। नेक्स्ट, हियर इज वन एग्जाम्पल ऑफ एंटोनिम्स रिलेशनशिप। अब देखिए वन बाय वन करके आपको ये रिलेशनशिप दिए जा रहे हैं, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। बेटे एम केट और ई केट जो है इसकी इंग्लिश बाज़ औक़ात बच्चे इतना फील करते हैं, कहते हैं सर बहुत मुश्किल है। मैंने आपको कहा ना कि टेक्निक्स अगर आप अप्लाई करें तो इंशाल्लाह चीज़ आसान हो जाती है। अभी आप देखते जाइएगा कि ये आपको किस टेक्निक से हम सिखा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये आसान हो जाए। अब देखिए, बिग और स्मॉल, बिग और स्मॉल, फुल। अब बताइए एंटोनिम्स रिलेशनशिप है ना, बिग का स्मॉल से एंटोनिम्स रिलेशनशिप है, तो फुल का क्या होना चाहिए देखते हैं। लुक एट, अगर आपके जहन में तो सोचिए, नोट डाउन कीजिए, अगर मैच कर जाए तो वेल एंड गुड। आइए देखते हैं क्या हो सकता है। बिग स्मॉल फुल, एम्प्टी। गेटिंग? ओह गुड, थैंक यू, वेरी गुड। क्या है हमारे पास? फुल का एम्प्टी, बिग स्मॉल फुल एम्प्टी। अच्छा, ये वर्ड एम्प्टाई भी पढ़ा जाता है, लेकिन कब? जब ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है तो एम्प्टी है। गेटिंग? ओके, कहते हैं ना एम्प्टाई द रूम प्लीज। एम्प्टाई का मतलब खाली कर देना,
गेटिंग? यस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास पार्ट टू होल रिलेशनशिप। अब इस नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर इसमें है पार्ट टू होल, व्हील टू कार। अब देखिए व्हील टू कार, ब्रांच टू, व्हील इज टू कार और ब्रांच इज टू। सोचिए, जब व्हील कार के लिए, व्हील पार्ट है और कार इसका होल है, ब्रांच पार्ट है और होल क्या हो सकता है? आगे होगा आपके जहन में, लुक एट द स्क्रीन। ट्री, branch is to tree, wheel is to car, branch is to tree. Do you get it? Understood? समझ आ रहा है बेटा? Okay, well done, शाबाश। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट पे जाने से पहले सुन लें, आप जितने भी लिसनर्स हैं और व्यूअर्स हैं जो इस वक्त सुन रहे भी हैं, देख भी रहे हैं ये लेक्चर, अगर आप में से किसी ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब आने वाली जितनी वीडियोस होंगी माशाल्लाह वो ज़्यादातर पहले एम कैट से ई कैट से मुतालिक होंगी। डेली आपको कोई ना कोई इसमें वीडियोस मिलेंगी और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। गेटिंग? ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश विद सईदुल्लाह खान। लर्न इंग्लिश विद सईदुल्लाह खान। ओके, नेक्स्ट, हियर इज वन एग्जाम्पल ऑफ मेंबर टू कैटेगरी। अब देखिए, मेंबर टू कैटेगरी, वो जो चीज़ है वो किस कैटेगरी की मेंबर है, यानी किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, ये भी देखना पड़ता है। अब देखिए, एप्पल किस कैटेगरी में? एप्पल एक मेंबर है, किसका मेंबर है, किस कैटेगरी का? फ्रूट का। तो फ्रूट का मेंबर एप्पल है। कैरेट किसका मेंबर है? अच्छा, इस पे बड़ा मसला है कि कैरेट वेजिटेबल्स है या फ्रूट है, ठीक है? तो याद रखिए कैरेट वेजिटेबल्स है, ठीक है? तो ये आगे इसमें क्या हो गया? एप्पल फ्रूट और कैरेट वेजिटेबल्स। बहुत सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो फ्रूट के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं। एक्चुअली टोमेटो फ्रूट है, हम वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कैरेट भी एक्चुअली फ्रूट है, लेकिन हम इसे वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जो उर्फ आम में है, जो कन्फर्म है, उससे इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट, हियर इज वन एग्जाम्पल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। एक दूसरी एग्जाम्पल आ गई कॉज एंड इफेक्ट की। अब देखिए, कॉज एंड इफेक्ट, सिल्वर पेन, सॉरी सिलाइवर, ठीक है ना? सिलाइवर पेन हीट। अब पेन का कॉज सिलाइवर बना, ठीक है ना? सिलाइवर पेन, ठीक है, ये पेन का कॉज सिलाइवर बना। हीट का कॉज क्या है? सॉरी, हीट का कॉज क्या होगा हमारे पास? अभी आप देखिए, इसमें हम थे हीट के कॉज पे, ठीक है ना? आ जाते हैं दोबारा, डजंट मैटर, थोड़ी स्लाइड हमारी प्रीवियस में हो गई। नाउ हीट का बॉयल। अब देखिए, कॉज एंड इफेक्ट, बॉयल होता है तो हीट आती है, देखिए, स्लैबर होता है तो पेन होता है, ठीक है? नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट भी आता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैटर ऑफ डिग्री। मैटर ऑफ डिग्री क्या है? ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर में। वार्म, हॉट, कूल क्या बनेगा बताइए? वार्म, हॉट, कूल, फ्रिज्ड, ठीक है? कूल, फ्रिज। कूल, फ्रिजिड, ठीक है? नेक्स्ट, हियर इज वन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट फंक्शन। अब फंक्शन के लिहाज से देख लीजिए। फंक्शन के लिहाज से मतलब वो चीज़ क्या काम करती है, फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि उस चीज़ का फंक्शन क्या है। अब जैसे ट्रक है, ट्रांसपोर्ट के फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है? ओवन, ओवन का फंक्शन क्या होता है? जब ट्रांसपोर्ट है ये, भाई ट्रक ट्रांसपोर्ट है, ओवन का फंक्शन क्या होगा? बेक, ओके? ओवन बेक करता है और ट्रक जो है ट्रांसपोर्ट करता है, चीज़ों को ले जाता है, ठीक है? गेटिंग? तो इसका फंक्शन क्या है? इसी तरह प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक अपना फंक्शन बताया, आपको एक फंक्शन बताया था नाइफ। नाइफ का फंक्शन क्या था? कट, ठीक है?
तो नाइफ का फंक्शन कट बन जाएगा। नेक्स्ट, आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अभी हमने कुछ इसमें ये देखा, हमने समझने की कोशिश की कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं। अब इन्हीं में से थोड़ा सा जो अभी हमने देखा है, सीखा है, इनमें से कुछ प्रैक्टिस करते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप? क्या आप इनका आपस में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसको कहते हैं मैच द कॉलम। गेटिंग? ठीक है, समझ आ रहा है इसको? प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मुझे आपको। मैच द कॉलम। अब देखिए नंबर 1, प्लेटून, सोल्जर। अब देखिए प्लेटून, सोल्जर, प्लेटून और सोल्जर का रिलेशन क्या बना आपस में? अब इनमें से देखिए 1 2 3 4 5 6 दिए मैं, इधर ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ, इधर भी 6 दिए मैं। अब हमने इसके लिहाज से मैच करना है, क्या प्लेटून और सोल्जर, क्या ये सिनोनिम और एंटोनिम हो सकते हैं? क्या ये पार्ट टू होल हो सकता है? क्या ये अ मेंबर टू द कैटेगरी दैट कंटेन्स इट? क्या कॉज और इफेक्ट हो सकता है, या इफेक्ट और कॉज हो सकता है? वेरिंग डिग्रीज ऑफ अ क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी हो सकता है? ऑब्जेक्ट टू फंक्शन क्या हो सकता है, जरा देखते हैं इसमें। ठीक है, प्लेटून सोल्जर, जी सोचिए क्या होना चाहिए इसमें। लीजिए जनाब, अब आपके सोचने का टाइम खत्म। ये देखिए नंबर 1, बी, अपार्ट टू होल। प्लेटून इसका पार्ट है और सोल्जर ये इसका क्या है? ये इसका होल है। गेट इट? नंबर 2, हॉट स्कैल्डिंग। हॉट और स्कैल्डिंग, इसका रिलेशनशिप आपस में क्या होगा? फिर सोचिए, देखिए, गौर कीजिए, यूज योर माइंड, लगाइए अपना दिमाग बेटा। इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा इसमें। ये एक्सरसाइज जो है ये आपको मज़ीद शार्प कर देगी, आप देखिएगा। जी जनाब, आपके जहन में जो भी आया होगा, अब इसका आंसर देख लीजिए। ई, अब हॉट स्क्लैडिंग सॉरी स्कैल्डिंग, ई है, वेरिंग डिग्री ऑफ अ क्वांटिटी और अ क्वालिटी। ये हॉट की डिग्री है, हॉट और स्कैल्डिंग दोनों दर्जे हैं। गेटिंग? अभी हमने प्रीवियस भी सीखा था। नंबर 3, स्टारवेशन एंड बिंजिंग। ठीक है, स्टारवेशन एंड बिंजिंग, इनमें क्या डिफरेंस है, किससे मैच करेगा ये? देखिए नंबर 1 से, ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। गेटिंग? डू यू गेट इट? ओके, नाउ नंबर 4, गिल्स और ब्रीथिंग। गिल्स और ब्रीथिंग, इनका रिलेशनशिप एफ से ज्वाइन हो रहा है। ऑब्जेक्ट टू फंक्शन, गिल्स, ये मछलियों के जो गल फड़े होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है, वो वहां से सांस लेती हैं। तो गिल्स का फंक्शन बता रहे हैं कि वो ब्रीथिंग है, तो ऑब्जेक्ट गिल्स हो गया और फंक्शन क्या हो गया इसका? ब्रीथिंग। गेटिंग? तो ये क्या था? ऑब्जेक्ट टू फंक्शन। डू यू गेट इट? समझ आ रही है बात? ओके, नाउ नंबर 5, कम टू नंबर 5। नंबर 5 है परसुएसिव और कन्विंसिंग। दोनों में क्या है? परसुएसिव और कन्विंसिंग, क्या सिनोनिम से एंटोनिम से क्या है? ये ए बी ई ए और एफ तो हो गए। अब देखिए क्या बचा आपके पास, आइए देखते हैं, मैच करते हैं। फिर ए, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। गेटिंग? ओके, सॉकर और स्पोर्ट, इनमें क्या रिलेशनशिप है? सॉकर एंड स्पोर्ट, इनमें रिलेशनशिप है अ मेंबर टू कैटेगरी दैट कंटेन्स इट। अब देखिए सॉकर स्पोर्ट में ही आता है, उसका मेंबर है, उसकी कैटेगरी। आई थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज और दिस प्रैक्टिस। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस समझ आई होगी। इसी तरह
कि कई प्रैक्टिसेस आप कीजिए। आप अगर इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उस पर भी ऐसी बहुत सी एक्सरसाइजेज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। बेटे इंटरनेट को तो मैं कहता हूँ ये अलादीन का एक चिराग है, लेकिन याद रखिएगा कि इसमें जो चीज़ें होती हैं उसमें बहुत सी अमेंडमेंट की नीड होती है। ऐसा नहीं है कि ये बाइबल है या द कुरान कैन नॉट बी चेंज, नहीं किया जा सकता या इसमें गलती नहीं हो सकती, होती हैं बेटा। ये तो इंटरनेट है, बुक्स में गलतियां हैं बेटा। 9 क्लास की इंग्लिश की बुक्स में गलतियां हैं, मैट्रिक की इंग्लिश की बुक्स में गलतियां हैं मेरे बच्चे। सेकेंड ईयर में है, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी मैं ये जो लेक्चर शुरू करूंगा ना इंग्लिश पढ़ाना, उसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की ऑनलाइन और इस पे यूट्यूब पे, तो इसमें भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। नाउ डू यू गेट इट? समझ आ गई है? प्रैक्टिस हो गई। नेक्स्ट कहते हैं अप्रोचेस दैट मे बी हेल्पफुल इन आंसरिंग एनालॉजीज क्वेश्चन। वो कौन कौन से अप्रोचेस हैं जो आपको एनालॉजीज में बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं? नंबर 1, ट्राई टू डिटरमिन द precise relationship between the words in the given pair। सबसे पहले तो ये precise relationship पे गौर कीजिए। नंबर 2, form a sentence that captures the relationship between the two words। सेंटेंस बनाकर देखिए कि वो इन दो वर्ड्स की क्या रिलेशनशिप आ रही है। देन look for the answer choice containing the word pair whose relationship is closest to that of the given pair and can be expressed in a similar fashion। क्या उसी फैशन में, या फैशन का मतलब फंक्शन है, क्या वो उसी फंक्शन में आ रहा है, क्या उसी कैटेगरी में आ रहा है? इफ़ इट इज़ द सेम कैटेगरी तो उसे उस कैटेगरी में तलाश कीजिए, ढूंढिए। बेटा इसमें टाइम रिक्वायरिंग है, वक्त चाहिए इसे, लेकिन अगर आप मेहनत करें और डिटर्मिन्ड रहें तो इंशाल्लाह ये इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स पे। अब हमारे पास मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम इसकी खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इसमें ये कौन कौन से हैं जो सही हैं। एग्जाम्पल, अब जैसे कहते हैं एप्पल फ्रूट, ठीक है, आगे बताइए एप्पल फ्रूट, एप्पल फ्रूट की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ बताइए कौन सी चीज़ है जो सैलेड, क्या मिक्स में आएगा? ऑरेंज, बनाना, जूस, कैन, स्लाइस, कोल, बटरफ्लाई, इंसेक्ट। थिंक ABCDE। ये आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। नाउ प्लीज सेलेक्ट एनी विच वन इज द करेक्ट वन। अब देखिए मैं आपको एक हिंट दे दूं, एप्पल फ्रूट तो कैटेगरी को बता रहा है। अब इसमें से देखिए कौन सा ऐसा पेयर है जो जिसमें यानी मेंबर और कैटेगरी है। कौन सा मेंबर किस कैटेगरी का है? एप्पल फ्रूट का मेंबर है, फ्रूट इसकी कैटेगरी है। अब देखिए इसमें क्या स्लाइस कोर है, जूस कैन है, क्या ऑरेंज बनाना है, सैलेड मिक्स है, या बटरफ्लाई इंसेक्ट है? आइए देखते हैं विच वन इज द करेक्ट वन। Butterfly insect, that's the correct one. Why? Because butterfly is a member of insect, insect में आता है, इसलिए ये सही है। Next, how do you know if you have a good sentence? आपके पास अगर एक अच्छा सेंटेंस है तो बताइए आप कैसे जान सकते हैं? Look at the answer choices। सबसे पहले आंसर की चॉइसेस देखिए, फिर तमाम चॉइसेस को देखिए, नहीं कि बस फौरी तौर पे 1 को 2 को 3 को देखा और फौरन आपने आंसर लगा दिया, नहीं। इफ मोर देन वन आंसर चॉइस सीम टू फिट, अगर बातों का रह सकता है एक से ज्यादा आपको लगे कि ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है, देन योर सेंटेंस इज टू जनरल। तो फिर देन योर सेंटेंस इज टू जनरल, तो आपका सेंटेंस बहुत जनरल है। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही हो, ऐसा सेंटेंस देखिए। इफ नन ऑफ देम वर्क, अगर इसमें कोई भी काम नहीं आ रहा, देन योर सेंटेंस इज टू स्पेसिफिक। गेट इट? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेन एंड राइट। अब बताइए कौन सा इसमें सही होगा? पेन और राइट, क्या ये वो हमारा नहीं बन रहा फंक्शन, यानी हम कह सकते हैं फंक्शन है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन है। ऑब्जेक्ट क्या? पेन, उसका फंक्शन क्या है जनाब? राइट।
काटना, तो फंक्शन आ रहा है ना इसमें, तो देखते हैं इसमें कौन सा हो सकता है। ओ, नाइफ टू कट। अब देखिए नाइफ टू कट, ये इसका फंक्शन आ गया, तो फंक्शन के लिहाज से हो गया ये। गेटिंग? नेक्स्ट, हेल्पफुल अप्रोचेस। हेल्पफुल अप्रोचेस कौन सी है? पे अटेंशन टू द ऑर्डर ऑफ द वर्ड इन द पेयर। जो भी पेयर आपको दिया हुआ है ना, उसमें सबसे पहले आप अपनी अटेंशन बहुत गौर से, बहुत एहतियात से समझिए, उस पर गौर कीजिए बार बार कि किस कैटेगरी का है। फिर पे अटेंशन टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर गौर कीजिए, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव, एक्चुअली एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, क्या है, प्रेपोजिशन है, इस पे फोकस कीजिए, बिलखुसूस एडजेक्टिव और एडवर्ब पर। नेक्स्ट, रिलेशनशिप्स जो है यू नीड टू एक्सप्लेन विल बी कांस्टेंट रिलेशनशिप। कांस्टेंट रिलेशनशिप भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है एनालॉजी क्वेश्चंस आर वोकैबुलरी इंटेंसिव। वोकैबुलरी इंटेंसिव भी हो सकता है, वोकैबुलरी भी फोकस हो सकता है। ये जो मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ ना, इसे गौर से लिख, अपने पास नोट कर लीजिए, गौर से समझने की कोशिश कीजिए। रिमेंबर दैट अ सिंगल वर्ड कैन हैव सेवरल डिफरेंट मीनिंग। ये याद रखिएगा कि एक वर्ड के कई डिफरेंट मीनिंग भी हो सकते हैं। नाउ रीड इन द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में उसको रीड कीजिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, नेवर डिसाइड ऑन द बेस्ट आंसर विदाउट रीडिंग ऑल द आंसर चॉइसेस। सारी आंसर चॉइसेस को पढ़े बगैर किसी एक या दो को पढ़कर ही अपना आंसर ना लगा लीजिए, सबको पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट, practice recognizing and formulating relationship between word pairs। प्रैक्टिस कीजिए इसके दरमियान, इंशाल्लाह यू विल गेन मच मोर। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रैक्टिस है हमारे पास लार्ज और बिग। अब देखिए लार्ज और बिग, अब इनमें से कौन सा होगा, अब आप समझने की कोशिश कीजिए इनमें रिलेशनशिप क्या है। क्या ये सिनोनियम्स हैं एक दूसरे के? क्या एंटोनिम से क्या है? रिमेंबर, फॉरगेट, ट्रायम्फ सक्सेस, नॉस्ट्रिल स्मेल, ऑडियो हियर और ग्लासेस सी। अब देखिए क्या रिलेशनशिप है भाई, ट्रायम्फ एंड सक्सेस है, ये सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। ओह गुड, थैंक यू। नेक्स्ट, बैट हिटर। अब ये मेरे ख्याल से फंक्शन हो सकता है, आप खुद देख लीजिए। बैट का फंक्शन क्या, हिट करना। अब इसमें बता दीजिए फंक्शन क्या हो सकता है। स्टिक, हॉकी प्लेयर। ओके, स्टिक और हॉकी प्लेयर, ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट, कम और केम। अब इनमें क्या फंक्शन है, यहाँ पर इनमें क्या रिलेशनशिप है, इनमें क्या वर्ड पैटर्न बन रहा है, या इनका क्या रिलेशनशिप बन रहा है। अब इसे देख लीजिए आप, इनमें क्या रिलेशनशिप है माय डियर। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म का रिलेशनशिप है, फॉर्म ऑफ वर्ब, उनका रिलेशनशिप है। अब देखिए अगर इसमें हम सेलेक्ट करेंगे तो आई थिंक बी इज द करेक्ट वन, राइड और रोड होना चाहिए, क्योंकि राइड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म रोड है। और गुड, अब देखिए राइड एंड रोड, गेटिंग। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो हमने प्रैक्टिस की है, इसकी कुछ मैं आपको टिप्स बता देता हूँ। ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप उस पर लिखें अपने गूगल पर, आपके पास आ जाएंगे। एनालॉजीज गेम्स में आ जाएंगे, सम ऑसम एनालॉजीज लिखिए। फिर आप लिखिए गेम इक्विरम एनालॉजीज आ जाएगा, ठीक है। एनालॉजी ऑफ द डे आ जाएगी, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेगी, ये आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, टाइम आफ्टर टाइम इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसमें कुछ हमने प्रैक्टिस किए, कुछ रूल्स रिवाइज किए हैं, कुछ हमने इसमें समझने की कोशिश की है और कुछ हमने ब्लैंक्स फिल किए हैं। ये एक स्लाइड बनाने का मकसद आपका वक्त बचाना था और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाना था। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर लेक्चर समझ आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए
और दूसरों तक इसको पहुंचाइए। आप तमाम की ये चीज़ें सदका जारिया बन सकती हैं। प्लीज़ डू इट एज मच एज यू कैन, ओके, एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। शाद रहिए, आबाद रहिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अवेटेड रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आने वाला है। वो इंशाल्लाह स्पॉटिंग एरर्स पे होगा। स्पॉटिंग एरर्स क्या होते हैं, किस तरह हम उन्हें जो है करेक्ट करते हैं, इनकरेक्ट सेलेक्ट करते हैं। ओके, इजाज़त दीजिए सईदुल्लाह ख़ान को। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।